Staffing. According to Theo Hyman, the staffing function pertains to the recruitment, selection, development, training, and compensation of subordinate managers. Staffing. Introduction. Staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. The need of staffing arises since the initial period of organization. Right person at right job with right pay is the basic principle of staffing. Staffing includes point number 1, human resource planning. The primary concern of staffing function is timely fulfillment of manpower requirement in an organization. The process of manpower planning can be divided into two parts. Determining quantitative needs, that is how many people will be needed in future, and qualitative needs, that is what quality and characteristics are required for performing a job. अब यहाँ पर प्राइमरी कंसर्न स्टाफिंग फंक्शन का ये है कि भाई मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना है और क्या क्वालिटी का चाहिए। क्वांटिटी मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई कितने लोग चाहिए, और क्वालिटी मतलब उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, या तो हम उनका स्किल बोल सकते हैं ये जॉब परफॉर्म करने के लिए। Point number 2, acquisition. It is a process which aims in attracting a number of candidates to apply for the job. It includes receiving of application. Many least promising candidates are eliminated unless right type of candidate is found. अब acquisition मतलब लोगों को, that is candidates को attract करना जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। Point number 3, training and development. Every enterprise has some special jobs that need certain specialized skills. The staff appointed has to be trained. Their existing abilities have to be developed further in order to accomplish the enterprise objectives. अब देखो, जब हम बात करते हैं कोई एक स्पेशल जॉब की, तो हर जॉब में कुछ खासियत होती है, हर जॉब में कुछ स्किल लगता है, कुछ नई चीज होती है। तो उसके लिए एम्प्लॉइज को ट्रेन करना, उसके लिए एम्प्लॉइज को डेवलप करना और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। पॉइंट नंबर 4, प्लेसमेंट. When a new employee reports for a duty, he is to be placed on the job which is best suited. Placement is very important process as it can ensure right person doing right job. अब देखिए, जब एक नया एम्प्लॉय ड्यूटी पे रिपोर्ट करता है तो ही शुड बी गिवन, उसको एक सही जगह पे प्लेसमेंट किया जाना चाहिए। प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सही इंसान सही जगह पे काम करेगा, और अगर सही इंसान सही जगह पे काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। Point number 5, compensation. It involves developing the system of fair and equitable remuneration of personnel appropriate with their contribution to the objectives of organization. यहां पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि भाई एम्प्लॉय को उसका रेमुनरेशन उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से मिलना चाहिए। तो अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के तरफ आसानी से और मेहनत करके और दिल लगाकर काम करेगा। नंबर 6, परफॉर्मेंस अप्रेजल. इट इज कंसर्न विद रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय for the purpose of determining the need of training, transfer, promotions, etc. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है एम्प्लॉय को रेट करना, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करना, उनको ग्रेड्स देना।
अब ये सब करने से होगा क्या, इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए और प्रमोशन देने में ये ग्रेड्स, ये रेट्स काम में आएंगे। Point number 7, promotion and transfer. Promotion means advancement of employees to higher position, involving greater responsibilities, extra skills, and carrying greater pay and prestige. Transfer is a change in job of an employee without change in responsibility or remuneration. अब देखो यहां पर दो कंसेप्ट है, प्रमोशन देना और ट्रांसफर करना। प्रमोशन मतलब एम्प्लॉय को हायर पोजीशन देना, सैलरी बढ़ा देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देना और उनका ओवरऑल वैल्यू बढ़ा देना। लेकिन जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो ट्रांसफर में यहां पर सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ जॉब बोल सकते हैं, विदाउट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेमुनरेशन। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वही रहेगी, रेमुनरेशन भी वही होगी, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, एम्प्लॉय वेलफेयर. It includes anything that is done for the comfort and improvement of employees. अब देखो यहां पर कुछ भी जो हम एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, उनके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, उनके कंफर्ट के लिए कर रहे हैं, उनके इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय वेलफेयर में आएगा। इट प्रोवाइड्स ओवर एंड अबव वेजेस, इट इज प्रोवाइडेड ओवर एंड अबव वेजेस, मतलब उनके वेजेस से ऊपर जो हम उनको दे रहे हैं, उनके वेजेस से अलावा जो हमको उनको दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉय वेलफेयर। इट हेल्प्स इन कीपिंग द मॉरल एंड मोटिवेशन हाई सो एज टू रिटेन द एम्प्लॉयज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब यहाँ पर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगाव हो जाता है, क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लिए कुछ ज्यादा कर रही है, पगार से कुछ ज्यादा सोच रही है, तो यहाँ पर वेजेस की वजह से और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की वजह से एम्प्लॉय जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा समय के लिए रुक जाते हैं, काम करते हैं। Importance of staffing. Point number 1, effective managerial function. Staffing is the key to effective performance of other functions of management such as planning, organizing, directing, controlling. The outcome of other functions is based on the effectiveness of staffing. यहां पर थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है कि भाई प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना प्रॉपर होगा अगर मेरे पास स्टाफ सही है, मेरे पास मैन पावर रिसोर्सेस सही है। तो बाकी फंक्शंस को इफेक्टिवली चलाने के लिए प्रॉपर स्टाफिंग जरूरी है। इसीलिए स्टाफिंग की वजह से बाकी सारे फंक्शंस प्रॉपरली चलते हैं। Importance of staffing. Point number 2, leads to effective utilization of human resources. Staffing function leads to effective utilization of human resources, that is workforce. Proper care is taken at every stage such as recruitment, selection, placement, remuneration, training, development, etc. तो अब देखिए यहाँ पर जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। प्रॉपर पर्सन प्रॉपर जगह पे काम कर रहा है। इन शॉर्ट, अ प्रॉपर पर्सन इज अपॉइंटेड ऑन अ प्रॉपर प्लेस बिकॉज ऑफ प्रॉपर रिक्रूटमेंट, प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर प्लेसमेंट, प्रॉपर रेमुनरेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। Point number 3, builds cordial relationship. This function is helpful in building healthy relationship among all level of employees in the organization. A smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial efforts in an organization. अब देखो यहाँ पर अगर प्रॉपर स्टाफिंग होगा, सही बंदे सही जगह पर काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के बीच में तालमेल अच्छा होगा, कोऑपरेशन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो यहां पर बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पॉइंट नंबर 4, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट.
स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ इज द बेस्ट असेट ऑफ बिजनेस कंसर्न। अब यहाँ पर बोलने की जरूरत ही नहीं है, अगर स्टाफ हमारा स्किल्ड और एक्सपीरियंस है तो वो हमारे बिजनेस की एक बड़ी प्रॉपर्टी है। Staffing helps to include the corporate culture into the staff, which in turn ensures smooth functioning of all the managerial aspects of the business. अब यहाँ पर देखो ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट होगा। सही बंदे सही जगह पे काम कर रहे हैं, सही बंदे सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सही बंदे सही स्किल्ड एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहे हैं, तो इन दैट केस ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा। लोग एक दूसरे के साथ काम कर कर सीखेंगे और फाइनली हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा। Number 5. Helps in effective use of technology and other resources. Trained employees can use the latest technology, capital, material, and methods of working efficiently and effectively. It is also helpful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity. अब देखो टेक्नोलॉजी से अगर हमारा स्टाफ अपडेटेड है तो प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, हमारा कैपिटल प्रॉपर यूज होगा, हमारे मटेरियल जो है उसमें वेस्टेज नहीं होगा। तो यहां पर ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, प्रोडक्टिविटी, जिसका क्वालिटी भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन क्वांटिटी भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग। पॉइंट नंबर 6. improves efficiency. Staffing includes training and development programs for the employees of an organization. It improves organizational productivity. Through proper selection, the organization gets quality employees, and through proper training, the performance level of the employees can be improved. अब देखो यहाँ पर बात हो रही है स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब ट्रेनिंग भी दिया जाता है और स्किल्स को डेवलप भी किया जाता है, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है। अगर प्रॉपर सिलेक्शन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो क्वालिटी एम्प्लॉइज मिलेगी, और अगर क्वालिटी एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके उनका डेवलपमेंट करके हमारे लेवल जो है एम्प्लॉइज के वो इंक्रीज कर सकेंगे। और जब एम्प्लॉइज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। Point number 7. Long-term effect. Staffing function has long-term effect on the efficiency of an organization. Qualified, efficient and well-motivated staff is an asset of the organization. Proper choice of employee can lead the organization towards the path of success. अब ये सब मैंने पहले भी बताया कि भाई स्टाफिंग जो है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड वेल मोटिवेटेड स्टाफ हमारे बिजनेस के लिए असेट है। तो अगर प्रॉपर चॉइस एम्प्लॉय का होता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस पाथ जो है वो क्लियर है। इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलना ही मिलना है। पॉइंट नंबर 8. एसेंशियल कंट्रीब्यूशन. Staff selection should be based on the ability of the prospective employees to meet the future challenges that the organization is going to face. Therefore, the contribution of staff in the future role should be taken into account in staff selection. अब स्टाफ सिलेक्शन के टाइम पे उसकी एबिलिटीज, उसका एजुकेशन, उसका स्किल, उसका नॉलेज वो देखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि फ्यूचर में वो हमारे क्या काम में आ सकता है। तो अगर समझो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय में अपना फ्यूचर देखता है तो एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना फ्यूचर देख सकता है, तो जिसके वजह से हमको एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय मिल जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है।